Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Okay, this is your English A class, and we were doing the reading of the unit number 8. Now let's start the exercise. We have done the words meaning and the sentences of this unit as well. You have to learn the word meaning, English meaning, and the Urdu meaning, and try to make different and new sentences. Don't copy paste the old sentences. Okay, let's start the exercise. The question is, put these sentences in the right order. Okay, you have read the story, so you have to arrange the sentences in the right order. Numbering आपने place करनी है in sentences की according to the story कि मतलब ये कहाँ पे था, ये middle में था, पहले ये sentence था या ये sentence था. Okay, number first one is Fatan wanted to know about his father. ये स्टार्टिंग वाला ही सेंटेंस था तो और इस चेक कर लेते हैं, सारे सेंटेंसेस चेक कर लेते हैं कि इससे पहले कोई था. अगर नहीं था तो दिस इज द नंबर 1 सेंटेंस. ओके, ही आस्क्ड हिज मदर टू टेल हिम वेयर हिज फादर लिव्ड. ये भी स्टार्टिंग पॉइंट ही है, स्टार्टिंग में से ही है, लेकिन कितना स्टार्टिंग है वो भी देख लेते हैं. नंबर 3 इज फैटन्स फ्रेंड डिड नॉट बिलीव दैट हिज फादर वाज अपोलो. Number 4 is his mother told him that his father was Apollo, the sun god. Okay, पहला हमारा ये था स्टोरी में. पहले इस लाइन का जिक्र हुआ, पहले ये लाइन हमने पढ़ी थी. Fatan wanted to know about his father, so this is the number 1 and the sentence number 4. This is on the second number. ये हमारे पास second पे आया था. इसके बाद इसके बारे में जिक्र था कि his mother told him that his father was the god son Apollo. Number 5 क्या था? After a very long journey, he reached Apollo's palace. Almost last पे आता है ये. Phaeton decided to go India to ask his father to help him. ये भी last का ही है. He said that Apollo lived very far in India. Number next, he told his best friend. Soon everyone knew about Phaeton's father. This is the number 3. ये हमारे पास नंबर 3 में आ रहा है. मतलब इन सारे सेंटेंसेस को अगर हम स्टोरी पढ़ के इनको अरेंज करें तो Phaeton wanted to know who is father. This is the number on the number 1. His mother told him that his father was Apollo, the god son. ये हमारे पास नंबर 2 पर आ रहा है. नंबर 3 पर आ रहा है he told his best friend. Soon everyone knew about the Phaeton's father. ये नंबर 3 पर आ रहा है. नंबर 4 पर है Phaeton's friend did not believe that his father was Apollo. नंबर 5 पर हमारे पास जो सेंटेंस आता है that is last one. Phaeton wanted to show them that he was telling the truth. According to the story आपने इन sentences को arrange करना है. नंबर 5 पे ये है. नंबर 6 पे this one, he asked his mother to tell him where his father lived. Number 7, she said that Apollo lived very far in the India. Number 8, Phaeton decided to go India to ask his father to help him. And number 9, after a very long journey, he reached Apollo's palace. अगर आप just इन 9 sentences को भी पढ़ें तो इनमें से भी आपको story as a story feel हो रहा है कि इनको arrange करेंगे तो ये एक आपको sequence मिल रहा है sentences का. ठीक है, so you have to put the number in the boxes according to the story. Number next आपके पास question है, see if you can find the correct prefix un or dis to the following. Prefix are the words that we add before the word. हमने antonyms वाला unit किया था ना English B में, उसमें भी हमने prefix use किए थे like in, im, un और dis. ठीक है, these are called prefix. जो word से पहले add होते हैं they are called prefix. यहाँ पर हमारे पास two prefix है un and dis. So according to the word आपने इनको place करना है. अच्छा, कुछ वर्ड्स हमारे पास कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको पढ़ के ही हमें रियलाइज हो जाता है कि ये वाला करेक्ट नहीं है.
इट डजंट साउंड गुड। जैसे अगर फर्स्ट वन है हैप्पी, तो हैप्पी के साथ अगर हम डिस लगाएं तो डिस हैप्पी, इट डजंट साउंड गुड। सुनने में ही वो बिल्कुल अजीब सा इनअप्रोप्रिएट सा लग रहा है कि डिस हैप्पी तो कभी कोई वर्ड हुआ ही नहीं, कभी सुना ही नहीं। तो डिस इज नॉट द करेक्ट वर्ड, अनहैप्पी। हम इसके साथ कौन सा प्रीफिक्स यूज करेंगे? अन। और प्रीफिक्स को जब वर्ड के साथ लिखते हैं तो वो कंबाइन करके लिखते हैं। पेपर में भी आप लोगों ने कुछ 2-3 स्टूडेंट्स ने सेपरेट करके लिखा हुआ था। प्रीफिक्स हमेशा वर्ड के साथ कंबाइन करके आते हैं, वो एक कंप्लीट वर्ड बन जाते हैं, उनको स्पेस के साथ नहीं लिखते। ठीक है, सो हैप्पी के साथ क्या यूज हुआ? अन। नेक्स्ट है अटैच्ड, डिसअटैच्ड और अनअटैच्ड। विच साउंड्स गुड? अनअटैच्ड। अनअटैच्ड वर्ड होता है। ठीक है, नंबर 3 इज एग्री। एग्री के साथ अनएग्री और डिसएग्री, डिसएग्री। नंबर 4 सेटिस्फाई, अनसेटिस्फाई और डिससेटिस्फाई, डिससेटिस्फाई, गैर मुतमईन। डिसप्लीज्ड और अनप्लीज्ड, डिसप्लीज्ड। डिसऑनेस्ट और अनऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट। डिसअपीयर और अनअपीयर, डिसअपीयर। अनेबल और डिसेबल, अनेबल। ठीक है, डिसेबल जो होता है वो माजूर, वो दूसरे वाला वर्ड आ जाता है, वो एक वर्ड है। ये अनएबल, किसी काम, कोई काम ना कर सकना, अनएबल। बिलीव, डिसबिलीव और अनबिलीव, डिसबिलीव। लिमिटेड, अनलिमिटेड और डिसलिमिटेड, अनलिमिटेड। Allowed, disallowed or unallowed, which one is the correct one? Disallowed. Certain, uncertain or discertain, uncertain. Appoint, disappoint or unappoint, disappoint. Educated, uneducated or diseducated, uneducated. Clear, disclear और unclear, unclear. ठीक है, तो these are the prefix. अब मैं आपको जस्ट एक टिप दे रही हूँ कि आप अगर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो कि नहीं, कंफ्यूज हैं आप और नहीं समझ में आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा, तो आप उस ऑप्शन को उस वर्ड के साथ रीड करके देख लिया करें। तो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियस में आपको पता चल जाएगा कि ये साउंड डजंट साउंड गुड, ये ठीक नहीं है। अदरवाइज लर्न करना है आपने, ऐसे नहीं रट्टे नहीं लगाने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एड द सुटेबल पास्ट पार्टिसिपल टू द फॉलोइंग सेंटेंसेस। व्हाट इज द पास्ट पार्टिसिपल? Past participle means the third form of the verb. This is not working well, so just ignore it. Just okay, leave it. हम नहीं underline कर रहे. Okay, so past participle means the third form of the verb. ठीक है, और जो हमारे पास सेकंड फॉर्म होती है वर्ब की, दैट इज कॉल्ड सिंपल पास्ट, जो कि हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं। नेम से ही क्लियर हो जाता है कि पास्ट टेंस में आपने पास्ट फॉर्म यूज करनी है। ठीक है, और प्रेजेंट में प्रेजेंट फॉर्म यूज करते हैं। वी हैव द थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, यूजुअली वी सेड वी कैन से इट फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, लेकिन इनके नेम्स होते हैं। फर्स्ट फॉर्म इज कॉल्ड प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड फॉर्म इज कॉल्ड पास्ट फॉर्म एंड द थर्ड फॉर्म इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। वी हैव अनदर दैट इज कॉल्ड फोर्थ फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल। वो उतना ज्यादा कंसीडर नहीं करते फोर्थ फॉर्म में, लेकिन होती है फोर्थ फॉर्म, दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसमें हम ing यूज करते हैं। Okay, past participle means the third form. So word है हमारे पास read, paint, eat, make, build, shake, give. The tea was dashed by mother. Make, make की आपने कौन सी फॉर्म यूज करनी है? पास्ट पार्टिसिपल। तो make की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या है? make, made, made. So you have to write here made. This book was dash by me. Read, read की past form क्या है? read, read, read. Spellings are same, but you have to pronounce it read. Read, read, read.
Number 3 is all the cakes were dashed by the children. All the cakes were eaten. Eat की past participle form. Eaten. Eat, ate, eaten. So all the cakes were eaten by the children. This building was dashed by my father. Build, built, built. Just T का difference है. Build, built, T and build, third form. When the branch was dashed, the apples fell down. Shake, shake की forms क्या है? Shake, shook, shaken. So we have the past participle shaken. Shake, shook, shaken. This picture was dashed by my uncle. Paint, paint की forms क्या है? Paint, painted, painted. The books were dashed to the school by Maham. Give, give की forms give, gave, given. So you have to write given here. Okay, so the next question is, who said these statements? आपको स्टेटमेंट पढ़नी है और आपको बताना है कि who said that statement. ये स्टेटमेंट किसकी थी, किसने कही थी? I will never tell anyone, mother. Who said that in the story? Fatten said Fatten. Or it's the name, so you have to write it with a capital letter. Fatten, P-H-A-E-T-O-N, Fatten. Next one is, I must go and see my father. That is also said by Fatten. Number 3, make a correction on your books as well. Number 3 में you cannot do that, only I. यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा sentence missing है. Write it on your books as well. इसकी correction कर लीजिएगा. Only I can drive the chariot. ये sentence missing है. You have to write it on your books as well. You cannot do that, only I can drive the chariot. Who said that? Said Apollo. Apollo ने ये कहा था उसको कि तुम भी ये नहीं चला सकते chariot, सिर्फ मैं चला सकता हूँ. Next one is, I will shout louder. Who said that? Fatten. When the horse was not listening to him, so he thought he must shout louder. Number 5th one is, I will tell you why Fatten is so happy. ये किसने कहा था कि Fatten क्यों happy है? मैं तुम्हें बताता हूँ. Fatten's best friend. Fatten के best friend ने अपने next best friend को ये कहा था. तो ठीक है, तो Fatten's या फिर आप यूं लिख सकते हैं द बेस्ट फ्रेंड ऑफ फैटन, क्योंकि अपोस्ट्रोफी एस हमारे पास ऑफ शो करता है, पोजेशन शो कर रहा है, ऑनरशिप शो कर रहा है. फैटन्स बेस्ट फ्रेंड मींस द बेस्ट फ्रेंड ऑफ फैटन. सो यू कैन राइट इट इन एनी वे. ओके, क्वेश्चन आंसर्स हम मंडे को करेंगे इंशाल्लाह. वी विल डू इट टुमारो मंडे इंशाल्लाह. आज हम कर लेते हैं जी इसकी समरी. ठीक है, write down the summary of the golden chariot of the sun. स्टोरी लॉन्ग थी तो ऑब्वियसली समरी थोड़ी सी लॉन्ग है आप लोगों ने, लेकिन इसको लर्न करना है. हाफ करके लर्न कर लें, अभी हाफ कर लें, रिमेनिंग वीकेंड पे कर लीजिएगा. बट यू हैव टू लर्न दैट स्टोरी विद स्पेलिंग्स. और आप जब लर्निंग करते हो बेटे, आप उसको एक फ्लो में लर्न करते हो. बस किए जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं. कहाँ पे कॉमा है, कहाँ पे सेंटेंस एंड हुआ है, उसको सीक्वेंस में लर्न करें. पता हो कि यहाँ पे एक सेंटेंस खत्म हो गया तो अब नेक्स्ट सेंटेंस आपने स्टार्ट करना है, तो आपने उसको कैपिटल लेटर से लिखना है. इस चीज़ों को ध्यान में रख के काम किया करें. ओके, समरी क्या है? इन ग्रीस कॉमा देयर वर अ बॉय नेम्ड फैटन. एक बॉय था जिसका नेम फैटन था. ही हैड नेवर सीन हिज फादर. उसने कभी अपने फादर को नहीं देखा था. और ये आपको कब पता चलेगा कि यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो गया है? तो आपने फुल स्टॉप प्लेस करना है, क्योंकि अगर आप उसको उस तरीके से रीड आउट करोगे, तो अगर आप ऐसे रीड करोगे इन ग्रीस देयर वाज अ बॉय नेम्ड फैटन ही हैड नेवर सीन हिज फादर, तो पता ही नहीं है कहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हुआ है, कहाँ पे पॉज लेना है. जब रीडिंग आपकी उस तरीके से नहीं है तो फिर आपको पता भी नहीं चलेगा. ओके, इन ग्रीस देयर वाज अ बॉय नेम्ड फैटन ही हैड नेवर सीन हिज फादर. His mother told him that his father was the god of sun, Apollo,
and he was responsible to drive the chariot with the sun from one side of the earth to the other side. अब उसकी मदर ने उसको क्या बताया कि उसके फादर जो थे वो गॉड सन है, गॉड ऑफ सन है और उनका नेम अपोलो है, और उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टू ड्राइव द चैरिट फ्रॉम द सन विद सन के साथ उन्होंने चैरिट ड्राइव करनी है फ्रॉम वन साइड ऑफ द अदर साइड, मतलब ईस्ट टू वेस्ट उन्होंने चैरिट को ड्राइव करना होता था. One day his friends laughed at him that he was the son of God and didn't believe him. जब उसके फ्रेंड्स ने उसको ये पता चला था तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाया था और उस पर बिलीव नहीं किया था उस पर. This made him very sad and he decided to travel far east as there was the palace of his father. अब जो उसके फ्रेंड्स ने उसका मजाक बनाया था तो उससे वो बहुत सैड हुआ और उसने डिसाइड किया कि फार ईस्ट की तरफ जाएगा, जहाँ पर उसके फार ईस्ट मीन्स दूर ईस्ट की तरफ, जहाँ पर उसके फादर का पैलेस था. When he reached the palace, Apollo was pleased to see him and offered him anything he wished. अपोलो जब वो पैलेस पहुंचा तो अपोलो उसको देख के बहुत खुश हुआ और उसको ऑफर किया कि वो कुछ भी उससे मांग सकता है, विश कर सकता है. Phaeton asked to drive sun chariot. Apollo explained him that it is very hard to control the sun chariot. But Phaeton refused to change his mind. अब क्या उसने अपोलो ने Phaeton ने क्या विश की थी कि वो सन चैरिट ड्राइव करना चाहता है, और अपोलो tried hard to explain him that it's very heavy and big, you can't control it, but he didn't change his mind. He refused to change his mind. So Apollo had to let Phaeton drive the chariot as he had already promised. So अपोलो को उसको सन चैरिट ड्राइव करने देना पड़ी क्योंकि उसने उससे प्रॉमिस किया हुआ था. Next day, Phaeton took the reins in his hand and began to drive the chariot. Next day, Phaeton ने जब मतलब chariot ड्राइव करना स्टार्ट की, उसने reins पकड़ी और began to drive the chariot. Soon, he realized that horses were too powerful that he could not control them. बहुत जल्दी उसको रियलाइज हो गया कि हॉर्सेस बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और वो उनको कंट्रोल नहीं कर सकता. The horses rushed from the route, setting the tops of the mountains on fire and burning up the water of the rivers and the seas. Horses का वो अपने रूट से, अपने रास्ते से हट गए, ठीक है, उस रास्ते पे नहीं चले क्योंकि वो उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था Phaeton हॉर्सेस को. और उससे क्या हुआ, दे सेटिंग द टॉप ऑफ द माउंटेन्स ऑन फायर, मतलब माउंटेन्स पे, जंगलों पे, पहाड़ों पे आग लग गई. एंड बर्निंग द वाटर ऑफ रिवर्स एंड सीज, रिवर्स और सीज का पानी जो है वो बॉयल होना शुरू हो गया. ऑल द गॉड्स मेट टुगेदर, दे कुड सी द डेंजर. Jupiter realized that he had to do something. Jupiter ने अब सारे gods मिले, उन्होंने realize किया कि उनको कुछ करना चाहिए वरना पूरी दुनिया ही तबाह हो जाएगी. He threw a deadly shaft at the chariot. उसने एक deadly shaft, lightning bolt, Phaeton की तरफ फेंका. It knocked Phaeton out of the chariot, and then Apollo was able to control his chariot. उस shaft ने, उस bolt ने, lightning bolt ने Phaeton को चैरिट से नीचे फेंक दिया और अपोलो फिर उस चैरिट को कंट्रोल कर सकता था. अपोलो गया और उसने उसको कंट्रोल किया. मलिहा टर्न ऑफ द वीडियो. That's how they saved the earth. इस तरह से उन्होंने अर्थ को सेव कर लिया, but could not save the boy. लेकिन उस बॉय Phaeton को सेव नहीं कर सके, वो नहीं बचा सके. So this is the summary of the golden chariot of the sun. Learn it and write it on the loose sheets. क्योंकि बुक्स पे तो ये ऑलरेडी लिखी हुई हैं, तो आपने क्या करना है, लर्न करना है इसको अच्छी तरह से और उसको लूज शीट्स पे लिखना है. इसलिए लिखना है ताकि एक तो आपकी, मैं आपको राइटिंग वर्क बेटा इसलिए दे रही हूँ कि आपकी राइटिंग इम्प्रूव हो, जो कि बहुत ख़राब हो रही है. और आप लोग किस तरह से कर रहे हो, इतना अनटाइडी होमवर्क आ रहा है, ऐसे जैसे बिल्कुल सर से उतार के दिया हुआ है कि बस ये लें जी, 1 घंटे में करके दे दिया और बाकी सारे दिन आप फ्री रहे. फ़ायदा ही कोई नहीं लिखने का उसको. प्लीज़ मेक श्योर कि आपकी राइटिंग नीट हो. अनटाइडी राइटिंग की बुक्स, होमवर्क्स मैंने इस टाइम चेक नहीं करना, ये अपने माइंड में बिठा लें. जिसकी राइटिंग अनटाइडी है होमवर्क में, स्पेशली बुक्स पे, वो मैंने चेक नहीं करनी. ठीक है बेटे. Tomorrow we will do the question answers of this unit.